start with the previously discussed topic, that step-by-step drawing of equivalent circuit diagram of single phase transformer. लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि हाउ विल यू रीच अप टू draw the equivalent circuit diagram of single phase transformer, in which we have drawn that primary circuit in which all the parameters of transformer refer to secondary side और secondary side के सारे parameters प्राइमरी साइड में रेफर करके उनकी कंप्लीट हमने वैल्यू निकाली थी, राइट। तो अब उसी को लेते हुए हम वन बाय वन उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वी विल ड्रॉ ए कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम लाइक दिस. So what it is, this is the equivalent circuit diagram of transformer in which we can basically show all the resistance, reactance, means all the parameters. What is the resistance, reactance? Resistance and reactance are the parameters of primary and secondary winding. So if you remember, this is the R1. R1 is the resistance of primary side, X1 is reactance of primary side, and this is your no load current I node. ठीक है. और नो लोड करंट के इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट वी कैन रिजॉल्व द नो लोड करंट into two components. One is I omega, means working component, another is IM, which is your magnetizing component. उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इस सर्किट में R नॉट और X नॉट भी शो करेंगे, राइट. दिस इज योर EMF इंड्यूस्ड एंड दिस इज सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मर. Clear? Again come to the secondary side of transformer where R2 is the resistance of secondary side, secondary winding, and this is reactance of secondary winding. What is this Z1? Z1 is, I think it is new for you. Z1 means होता है that आपका total impedance. और impedance क्या होता है? If you are done with the AC circuits, impedance is your resistance और reactance का sum. स्केयर ऑफ रेजिस्टेंस प्लस स्केयर ऑफ रिएक्टेंस, उन दोनों का रूट स्केयर, दैट इज़ योर इम्पीडेंस. ठीक है. तो इम्पीडेंस निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को स्केयर करके और उनका अंडर द रूट निकालना होता है. तो हमारा Z1 आ जाता है, मतलब प्राइमरी का इम्पीडेंस आ जाता है. तो इम्पीडेंस निकालने के लिए हमें दोनों ही पैरामीटर कंसिडर करने होंगे. इसमें I1 इज़ योर टोटल करंट. व्हाट इज़ दिस I2 डैश? I2 डैश अभी आप नेक्स्ट में देखेंगे. अगर इतना आपको समझ आता है तो हमने कम्प्लीटली ये सारे पैरामीटर एक ही सर्किट में ड्रॉ करके देखे, पूरे एक सर्किट में ले दिए. अब जिसमें से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, व्हाई वी आर डूइंग दिस टॉपिक अलोन और इंडिविजुअली और इन टोटली with a complete explanation, because whenever it will be asked in your exam, then question will be like कि draw the equivalent circuit diagram of transformer. तो उसमें आपको ये वाला diagram draw करना है. It is indicated, it is labeled as equivalent circuit diagram of transformer. आपको ये diagram पूरा draw करके then you have to describe or specify कि what are these things which are denoted in this circuit. So these are like, number one, where you know R1 is primary winding resistance. Clear? R1 is primary winding resistance. X1 is primary winding reactance. What is X1? X1 is primary winding reactance. R2 is secondary winding resistance. I naught is your no load current. यहाँ पर I naught is this. This is your I naught. This is your no load current. What it is? I naught कहाँ पर है? I'll show you clearly. This will be your I naught. I naught होगा आपका. This will be your I naught. Clear? So now I mu is your magnetizing component, which आप IM करके भी दिखा सकते हो. IW is your working component. अगर आपको याद हो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट किस लिए यूज़ होता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट इज जस्ट टू मैग्नेटाइज द कोर, एंड IW is your working component to overcome the losses in
ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? अगेन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो दिस विल बी, ये क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट एंड ई नॉट। क्या होगा ये हम पहले करके देख चुके हैं। ये क्या है, रिएक्टेंस, एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस। हम हमेशा क्या करते हैं, V1 V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है I और R, IR। अकॉर्डिंगली I क्या होगा, V बाई R, और R क्या होगा, V बाई I। R क्या होगा, R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमने लिखा एक्स नॉट लिखा हमने यहाँ पर, एक्स नॉट भी क्या है, रिएक्टेंस है, लाइक रेजिस्टेंस। तो करंट क्या होगा, आई नॉट। ई क्या होगा, वोल्टेज। वोल्टेज की जगह क्या है, ई। क्लियर? और आई की जगह क्या है, यहाँ पर देखो आई की जगह हमारा आई नॉट। सिमिलरली हमने ये वैल्यूज़ अलग अलग दिखा रखी हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट में मेनली क्या है, आपको इक्विवेलेंट सर्किट में अब आपको बारी बारी से ये सारी चीज़ें शो करनी है। ठीक है, अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वेट ए सेकेंड। इसमें अभी इस डायग्राम में हमें the secondary circuit is shown in figure and it is equivalent primary value is shown in figure 2। अब ये क्या है, ये हमारा क्या है कि इस सर्किट में पूरा हमारा ये क्या दिखाया हमने, इस सर्किट में सेकेंडरी साइड का जो सर्किट है वो हमने पूरा दिखा रखा है। ठीक है, लाइक R2 क्या है, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, X2 क्या है, सेकेंडरी का रिएक्टेंस, और सेकेंडरी साइड में हम लोड कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये हमारा वही सारी चीज़ें हमने इस पूरे डायग्राम में दिखाई हुई हैं। E2 आपका सेकेंडरी साइड का EMF इंड्यूस्ड, एंड वोल्टेज V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, Z2 आपका टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, यहाँ पर अगर इसी को हम दिखाएंगे कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम, अब जैसे हमने प्राइमरी के सारे पैरामीटर व्हेन रेफर टू द सेकेंडरी साइड, तो वो क्या बन गए थे, R2 डैश। तो R2 डैश की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, यही निकाली थी। R2 डैश क्या था, R2 बाई के स्क्वायर। और सिमिलरली X2 में हमने वी जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, in place of resistance we put the value of reactance। another thing जो आपका है वो divided by k square ही रहेगा, जैसे कि इसमें है वैसे ही इसमें रहेगा। I2 डैश क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो जो पहले हमारा I2 था वो हमने सारे के सारे प्राइमरी के पैरामीटर जब सेकेंडरी साइड में हमने रेफर किए तो हमारा सर्किट इस तरह से ही बनेगा, बट उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डैश करके हम डिफाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर भी I2 डैश लिखा। क्लियर? अकॉर्डिंगली हमारा ये सारे भी, ये अगर आपका ये सब हो जाता है, ये सारा हो जाता है, तो आप ये भी आराम से कर सकते हो। Z क्या होता है आपका, सिमिलरली जैसे हमने R और X का किया वैसे ही Z का भी डिवाइडेड बाय K स्क्वायर होगा। व्हाट इज K? K इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो कि हमारा इसमें डिवाइड होगा जब प्राइमरी साइड के पैरामीटर सेकेंडरी साइड पे रेफर करते हैं। डन? अब नेक्स्ट में टोटल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इन द प्राइमरी इम्पीडेंस। अब ये क्या है, ये हमने ऊपर यहाँ पर डिफाइन किया कि टोटल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है जब हम ऐड कर देंगे प्राइमरी का इम्पीडेंस पहले वाले डायग्राम में। तो हमने यहाँ पर क्या किया, R1 X1 एक साथ दिखाया, यहाँ पर दिखाया, और सेकेंडरी वाला जो बीच में ट्रांसफॉर्मर का था यहाँ पर खाली उसको हमने यहाँ से नहीं शो किया, वो सिर्फ हम इन पॉइंट से शो कर रहे हैं। कौन से पॉइंट से?
ये और ये, ठीक है। बाकी वो एज इट इज़ पूरा का पूरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो है वो हमारा इसमें ड्रॉ करके दिखाएंगे। लाइक ये वाला, दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस वन, ठीक है। तो इसमें हमने R1 X1 पैरामीटर शो किए, फिर प्राइमरी के रेफर किए थे सेकेंडरी साइड विच बिकम्स R2 डैश एंड X2 डैश एंड Z2 डैश, तो उनको हम यहाँ पर वही R2 डैश और X2 डैश से ही डिनोट करेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इट इज़, दिस इज़ द मोर सिंप्लीफाइड और इट कैन बी सिंप्लीफाइड। जो पहले वाले डायग्राम हैं उनको हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने दिखाया कि सिर्फ हमने ये प्राइमरी का जो नो लोड करंट था वो यहाँ दिखाया एज़ कम्पेयर टू जैसे हमने बीच में इधर दिखाया था, ठीक है। द डिफरेंस इज़ ओनली कि हमने इसको स्टार्टिंग में दिखाया, फिर हमने दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ शो किया। इसमें हमने प्राइमरी का रेजिस्टेंस अलग लिया है, प्राइमरी का रेजिस्टेंस अलग दिखाया, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस हमने जो चेंज करने के रेफर करके दिखाया वो अलग दिखाया। बट इस सर्किट में अब हम कंप्लीटली दोनों ही चीज़ों को, दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ रखेंगे, दोनों रिएक्टेंस को एक साथ रखेंगे, फिर टोटल प्राइमरी का रेजिस्टेंस और टोटल आपका रिएक्टेंस, ठीक है, ये सब दिखाएंगे। और फाइनली हम इस सर्किट को इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इट इज़ मोर सिंप्लीफाइड बाय ओमिटिंग आई नॉट। बाय ओमिटिंग आई नॉट मीन्स आप इस सर्किट को यहाँ से हटा के करेंगे तो सर्किट आपका ये वाला बनेगा। क्लियर? ये this is the complete formula for impedance. You don't need to do it right now, you can leave it, just do the up to this and all the previously done slides. I'll send you all the pics without marking, and this is your complete equivalent circuit diagram till here. Okay, तो आपका जो भी ये टॉपिक है पूरा, अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, देन यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल द पैरामीटर्स लाइक दिस, देन वन बाय वन यू कैन शो लाइक दिस। बट इफ़ इट विल बी आस्क्ड, अगर पूछा जाता है कि आप प्राइमरी के रेफर टू सेकेंडरी साइड आप ड्रॉ करके दिखाइए, वो भी बताइए, तो या हो सकता है पूछा जाए कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, तो आपको ये ड्रॉ करना है और उसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अगर और भी पूछा जाता है तो आप अकॉर्डिंग टू योर बुक्स में भी, आपकी जो त्रिलोक सिंह वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो आप, और एक्सप्लेनेशन आप इसमें से भी देख सकते हो। ओके, सो दिस इज योर टुडेज टॉपिक डन। थैंक यू। बचो 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 बचो।